حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوئے تو ان سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے گا تو بلا شبہ وہ میرا ہے، مگر وہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو سب نے اسے پیا مگر تھوڑوں نے نہ پیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ جنہیں اللہ سے ملنے کے یقین تھا وہ بولے کہ بارہا کتنی ہی چھوٹی جماعت غالب آئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے تو عرض کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا، اور اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ سارے جہاں والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے حبیب آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سامعین، یہ دوسرے پارے کی آخری آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے طالوت کا واقعہ بیان کیا کہ جو انہوں نے جالوت کے ساتھ اور قوم عمالقہ کے ساتھ انہوں نے کیا کی تھی، جنگ کی تھی۔ اس کا کچھ قصہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا تھا۔ آج یہ کہ جس وقت طالوت نے اپنے لشکر کو تیار کیا تو ان کو پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا اور خبردار کر دیا تھا کہ اللہ تمہیں کیا کرے گا، آزمائے گا، تمہیں آزمائش میں ڈالے گا کہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے دین کی سچی محبت لے کر اس کے ساتھ کیا کرنے والا، امداد اور اعانت کرنے والا ہے، اور کون ہے کہ جو منافق ہے۔ اب آزمائش میں ڈالنا رب تعالی یہ اللہ تعالی کی سنت الہیہ ہے تاکہ کھروں کو جھوٹوں سے اور کھوٹوں سے کیا کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، اور ان کو کیا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو وہ کیا ہوں گے، جائیں گے، بخشے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شہادت گاہ میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ لوگ تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، لیکن اقبال نے کہا کہ یہ اصل کے اندر، حقیقت کے اندر موت کو دعوت دینے کے بالکل کیا مترادف ہے اور برابر ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اس کے اوپر امتحانات آئیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو آریوں کے ذریعے کیا کیا جاتا تھا، چیرا جاتا تھا، وہ پھر بھی آ اور واویلا نہیں کیا کرتے تھے۔ تم پر بھی وہ وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تمہیں کیا کرے گا، آزمائش کے اندر اور امتحانات کے اندر کیا کرے گا، ڈالے گا۔ اور ایسے ہی ایک بہت بڑی پیاری روایت ہے کہ ایک صحابی رسول وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں
سرکار अलैहिस्सलाम फरमाया कि क्या अगर तू मेरे से मोहब्बत करता है तो गोया कि तू अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, तो फिर ये याद रख तेरे ऊपर आजमाइशें भी और तेरे ऊपर इम्तिहानात भी ऐसे आएंगे जिस तरह के सैलाब का पानी घाटी की तरफ यानी कि जिकाई की तरफ जाने के अंदर क्या करता है, जल्दी करता है, तेरे ऊपर आजमाइशें और इम्तिहानात भी ऐसे ही जल्दी आएंगे। तो रब ताला क्या करता है, खरों को खोटों से जुदा करने के लिए उनको आजमाइश के अंदर डालता है। अब तालूत ने अपने लश्कर को जमा किया और कहा कि रब ताला तुम्हें क्या करेगा, आजमाइश के अंदर डालेगा, तुम्हें आजमाएगा। और वो आजमाइश क्या होगी, फरमाया कि आगे जो नहर आएगी उस नहर के अंदर बाद हज़रात ने कहा कि वो फलस्तीन के अंदर क्या होगी, नहर होगी। फरमाया कि वो आगे नहर आएगी, रब ताला ने उस पानी को तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया, हराम कर दिया। फरमाया कि उससे पानी नहीं पीना। अब वो वहां से गुजर रहे थे और प्यास भी उनकी क्या है, शिद्दत की लगी हुई थी। वो चाहते पानी पीना चाहते थे, लेकिन तालूत का वो कौल याद आ जाता कि हमें अल्लाह ने क्या किया है, मना किया हुआ। तो फिर हजरत तालूत ने कहा कि हाँ, अगर कोई चुल्लू भर के पानी पीना चाहता है तो वो पी सकता है, लेकिन सैराब होकर और सैर होकर नहीं पी सकता। फिर उन्होंने चुल्लू भर कर पानी पिया, थोड़ा सा पानी पिया। जब वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो अब वो प्यास की शिद्दत की वजह से निढाल हो गए थे। उन्होंने कहा तालूत से कि आज हमारे अंदर ताकत और कुव्वत नहीं है, हम क्या है कौम अमालका के साथ और जालूत के साथ जंग नहीं कर सकते, हम कुश्ती नहीं कर सकते, हमारे से जिहाद नहीं हो सकता, हम क्या है बैठे हुए हैं। अब वो लोग कि जिनके दिल के अंदर हकीकतन मोहब्बत थी, उन्होंने कहा कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। फरमाया कि हाँ, हम लड़ेंगे और अल्लाह के हुक्म से हो सकता है कि हम उनके ऊपर क्या है, गालिब भी आ जाए। अल्लाह ने अगर हमारा साथ दिया तो हम जरूर भी जरूर उनके ऊपर क्या आ जाएंगे, गालिब आ जाएंगे। फिर यही मामला देखिए कि जिस वक्त जंगे बदर हुई हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 313 हजरात थे। अब ये 313 हजरात जंगे बदर के अंदर भी कलील फौज, अब इस कलील फौज ने, कलील जमात ने कसीर जमात के ऊपर क्या कर दिया, धावा बोल दिया और हमला किया और गालिब भी आ गए। और उधर तालूत के साथी भी तकरीबन 313 हजरात, वो कलील जमात उसने जालूत की कौम के ऊपर क्या की, हमला किया और धावा बोला। कि जिस वक्त ये कलील जमात उनके आमने सामने भी बरसारे पैकार हुई तो जालूतियों को उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया और उनको क्या कर दिया, भगा दिया मैदान से। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही, अब उन्होंने ये कहा था कि हम क्या जालूत के साथ लड़ रहे हैं और उन्होंने दुआ मांगी थी रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। कहा कि हमारे रब, हमारे दिलों के अंदर तू सब्र डाल और हमारे कदमों को क्या कर, साबित रख और काफिरों के खिलाफ हमारी क्या कर, मदद कर। अब ये दुआ का बदला और दुआ का समरा था कि रब ताला ने उनको क्या कर दिया, उन जालूतियों के ऊपर और उन कौम अमालका के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फतह दी और उन अमालकों को इनसे शिकस्त अल्लाह ताला के इज़्न से हुई। फिर जालूत को कत्ल किसने किया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। इनके बारे में आता है कि हजरत दाऊद के वालिद मोहतरम ईशा वो थे, उनके तकरीबन 12 बेटे थे। अब तालूत को वही हुई कि फुला बस्ती के अंदर एक आदमी है जो जिसका नाम क्या है, ईशा, उसका एक बेटा वो क्या करेगा, जालूत को कत्ल करेगा। अब हजरत तालूत ने कहा कि बुला के लेके आओ, अपने सारे बेटों को क्या करो, लेकर आओ। अब जो ईशा थे उन्होंने अपने पूरे बेटों को क्या कर दिया, सामने कर दिया। 11 बेटे सामने किए, कहा कि ये लेकिन जो निशानी और जो औसाफ और जो सिफात तालूत को बताई गई थी कि जालूत को वो कत्ल करेगा, वो निशानियां, वो औसाफ और वो सिफात इन 11 के अंदर नहीं पाई जा रही थी। हजरत तालूत ने कहा कि आया कोई और भी तेरा बेटा है या कि नहीं है, तो उसने पहले झूठ के तौर पर कहा कि और कोई नहीं। तो हजरत तालूत ने कहा नहीं, जो मुझे निशानी बताई गई वो इन 11 के अंदर नहीं पाई जाती, तो तू बता कोई और तेरा बेटा है या कि नहीं। उसने कहा वल्लाह है एक बेटा, लेकिन उसका कद छोटा है, वो कमजोर है, उसकी कमजोरी की वजह से और कद के छोटे होने की वजह से मैंने ये समझा कि ये जंग नहीं कर सकेगा, जिहाद नहीं कर सकेगा, इसलिए मैंने उसको अपने मवेशियों की देखभाल के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब हजरत तालूत खुद निकल के गए वहां हजरत दाऊद की
शनाख्त करने के लिए और उनको लेकर आने के लिए देखा तो वो क्या कर रहे थे, माल मवेशियों और डंगरों को क्या कर रहे थे, चरा रहे थे। ये अंबिया की सुन्नत है कि माल मवेशियों को क्या करना, चराना। आज हमारे कुछ जो सोशल मीडिया के साथ जो एक्टिव हजरात होते हैं, या वो जिनके अंदर मालो दौलत की क्या होती है, हवस और नशा होता है, वो फिर ये कुत्तों को पालते हैं और शेरों को पालते हैं और बिल्लियों को पाल कर अपने ऊपर क्या कर रहे होते हैं, फखर और वड्याई महसूस कर रहे होते हैं। और इसके मध्य मुकाबिल अगर कोई ऐसा आदमी हो को जो भेड़ बकरियां पालता हो, जो माल मवेशी रखता हो, तो उसको वो हकारत की निगाह से देखते हुए कहते हैं कि ये तो क्या पेंडू आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है, देहाती आ रहा है। उसको ये नहीं पता कि अगर वो हकारत कर रहा है तो ये पसे पर्दा कितनी अंबिया की वो क्या कर रहा है, हकारत कर रहा है। जो हराम माल को रख कर, उसको पाल कर उसके ऊपर वड्याई करता है, उसके ऊपर क्या करता है, तकब्बुर और फखर महसूस करता है, और उसके खिलाफ जो हलाल माल रखता है और वो गोया के सुन्नत अंबिया को सीने से लगाया हुआ है, लोग उसके ऊपर तंग करें, तो ये भी दीन से नावाकिफियत और दीन से दूरी की क्या है, बात है। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब तालूत ने देख लिया कि ये दाऊद है, अब उनको लेकर आ गए। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि रब तआला ने उनको मुल्क, बादशाही और हिकमत अता फरमाई थी। अब हिकमत बादशाही के जरिए उनको अता की। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को तालूत जब लेकर आए तो तालूत ने उनसे वादा किया, अगर तुमने जालूत को कत्ल कर दिया, मार दिया, मैं तुम्हें अपनी आधी बादशाही भी अता करूंगा और अपनी बेटी का अक़्द निकाह भी तेरे साथ कर दूंगा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना वादा पूरा कर दिया, जालूत को कत्ल कर दिया। अब तालूत ने बेटी का निकाह भी करा दिया और आधी बादशाही भी दे दी। लेकिन मसला ये हुआ कि उस बादशाही के अंदर जिस वक्त हज़रत दाऊद आए तो लोगों की जुबानों के ऊपर औसाफ जमीला सिर्फ और सिर्फ हज़रत दाऊद के आए। तालूत को इससे क्या बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, तो आपने हसद करना शुरू कर दी। अब हसद करने के बाद उन्होंने कत्ल का मंसूबा बनाया कि मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या करूंगा, कत्ल करूंगा। लेकिन बिल आखिर ये सारी इसराइली रिवायात हैं और रिवायत के अंदर आता कि वो कत्ल के मंसूबे से निकले, लेकिन कत्ल नहीं किया। फिर बिल आखिर वो इस बात के ऊपर नदामत का शिकार हुए, नादिम हुए और अल्लाह की राह के अंदर क्या करते रहे, जिहाद करते रहे और वहीं पर क्या हो गए, शहीद हो गए और कत्ल हो गए। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबअद, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही लोगों के बाज को क्या करते हैं, लड़ा कर, झगड़ा कर उनके फसाद को क्या करता है, खत्म करता है। अब ये देखिए कि एक तरफ से बातिल पर लोग हों तो वो बातिल को क्या करते हैं, आश्कार करते हैं और बातिल को वो तरजीह देते हैं और बातिल को वो तरक्की देते हैं। और एक तरफ उनके मध्य मुकाबले क्या होते हैं, हक वाले भी लोग होते हैं। फिर जो वो हक वाले लोग होते हैं, हक वालों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बातिल को पसमा करता है और बातिल की क्या करता है, तौहीन करता है और उनको क्या करता है, जलील और रुसवा करता है। फरमाया कि ये आयात वो है कि जो हमने आप पर हक के साथ क्या किए, तिलावत की है। और इनका बताने का मकसद क्या है या रसूलुल्लाह, ये है कि ताकि लोग इससे क्या करें, इबरत हासिल करें और इससे क्या करें, अंजाम कार को समझे कि हमारा क्या मामलात होगा, कि हम भी अगर अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों पर और अल्लाह ताला के बताए हुए अफ़आल करेंगे और ये तुरुक इख्तियार करेंगे तो हमारी इसके अंदर राह निजात है, वगरना राह निजात कोई नहीं। हक़ ताला में सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो इनायत के साथ दूसरे पारे की तफसीर जो है ना वो पाया तकमील को पहुंच गई। अल्लाह ताला से दुआ कि हक़ ताला में सही मानों के अंदर इसकी तफसीर और तशरीह समझने की और समझाने की तौफीक अता फरमाए और इसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए।